Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study. Today we are going to see the new topic of the motivation, that is equity theory of the motivation. Okay, so in that we are going to see what is meant by equity, equality, what are the three comparison methods which is going to be considered in equity. It is very interesting and everywhere we can see the equity theory of the motivation. So let's begin with the दिस इमेज. यहाँ पे आप देख सकते हो टू इमेजेस हैं, डिफरेंट हाइट के लोग हैं. आप देख सकते हो कि फर्स्ट इमेज में दैट टू एन्जॉय दिस मैच एवरी वन हैज़ गिवन बाय द इक्वल जो स्टूल दिया है, बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर हाइट दे कांट एन्जॉय द match. Okay, in picture number 2 you can see those who have the less height, he has been provided with the 2 stool, and the middle height has given provided with the single stool, and those who are able to see without stool, he can enjoy that match. So there is basic difference. You can easily judge the equality versus equity. In the first image, the equality is about the sameness. It promotes the fairness and the justice by giving everyone the same thing. सी यहाँ पे स्टूल दिया गया है सबको, बट एवरीवन इज़ नॉट एबल टू एन्जॉय द मैच. ओके, तो इक्वालिटी मतलब सबको सेम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, बट इससे ये नहीं प्रूव होता कि एवरीवन इज़ गोइंग टू एन्जॉय द match. And in the second picture, that equity, it is about the fairness. It is about making sure that people is getting access to the same opportunity. So there is a basic difference, equality versus equity. So in short, equality is nothing but the sameness and equity means the fairness. So फर्स्ट इंश्योर दैट इक्विटी बिफोर वी कैन एन्जॉय द इक्वालिटी. तो सबको एक लेवल पे लाने दो, देन यू कैन एन्जॉय दैट इक्वालिटी. So now we will see what is the equity theory of motivation. This theory has been proposed by the John Stancy Adams in 1963. Okay, and क्या है ये theory? So employees have the tendency to compare their job inputs with the output relative to the other. तो जो भी वो जॉब में इनपुट्स देते हैं, उसके जो भी आउटपुट आते हैं, उसको कंपेयर किया जाता है टू द अदर पर्सन, अदर ग्रुप. ओके, दैट इज़ व्हाट द टेंडेंसी, और उसी को कंसिडर करके ये इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बनाया है. सो बेसिक एम्स ऑफ दिस थ्योरी इज़ टू स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन इनपुट दैट ब्रिंग्स इन अ जॉब एंड आउटपुट रिसीव्स एट अ वर्क प्लेस. आप बोलोगे अभी इनपुट और आउटपुट इसमें कहाँ से आया? इनपुट इज़ नथिंग बट वॉट यू आर गिविंग इन योर workplace. Okay, so there are what efforts, your experiences, your educations, your skills, your competencies, right? And output is nothing but what you are getting from your input, that is your output. So it is basically your salary levels, your appraisal, your recognition, राइट. सो एक रिसर्च में माना जाता है, जो रिसर्च हो चुके हैं, कि जनरली एक कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल. आजकल तो मेल एंड फीमेल इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर इक्वली, एंड स्टिल द कंपैरिजन इज़ गोइंग टू बी डन विथ योर कलीग्स. ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी द इमेज कि बैलेंस करना इज़ इम्पॉर्टेंट. बैलेंस किसको करना है? आपके इनपुट, जॉब इनपुट को, एंड योर जॉब आउटपुट. जो टाइम जॉब इनपुट है, दैट इज़ time, loyalty, your efforts, your hard work, your energy, and your skills and competency. Job outputs are your salary, increment, promotion, job security, your appreciation, even your career growth. It is going to be considered your job output. So जो भी आपके job input है, job output है, उसका रेशो बना के then it is going to check your equity. Okay, तो पहले आप देखते हैं कि कंपैरिजन तो होती है एम्प्लॉयज़ की, बट दैट एम्प्लॉय इज़ गोइंग टू बी कंपेयर विथ योर co-workers, your friends, your colleagues, even your neighbors, and also among your present job versus your past job. यहाँ पे हम कंपेयर करते कि अरे मेरी सैलरी कितनी है, मेरे co-workers की कितनी है, उसको क्या प्रोफाइल मिलती है, मेरे नेबर्स की सैलरी क्या है, उसका करियर ग्रोथ क्या है. इवन फ्रेंड्स हो या इवन वी आर कंपेयरिंग आवर जॉब, जो भी जॉब प्रोफाइल है, योर सैलरी है, बिटवीन योर प्रेजेंट एंड योर पास्ट जॉब. सो बिकॉज ऑफ कंपेरिजन ये क्वेश्चन आता है अबाउट द
equity. Now we are going to see the three situation of the equity theory. सो थ्री सिचुएशन आते हैं इन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है आउटपुट एंड इनपुट, बट आउटपुट एंड इनपुट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन एंड इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर विद द अदर्स आउटपुट एंड अदर्स इनपुट, राइट. सो यहाँ पे थ्री सिचुएशन यू कैन सी ओवर हियर. सो फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पे योर आउटपुट इज़ डिवाइडेड बाय विथ योर इनपुट, एंड अगर वो मैच होते हैं विद द अदर्स आउटपुट एंड अदर्स इनपुट तो वो इक्वल हो जाएंगे. सो देयर इज़ व्हाट इक्विटी. व्हेन इट इज़ इक्विटी ऑटोमेटिकली देयर विल बी द सेटिस्फैक्शन. आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है, आपको आपके आउटपुट आपके इनपुट का रेशो को कंपेयर करना है किसी और के आउटपुट एंड इनपुट के रेशो को. फॉर एग्जांपल, अगर आप जो काम कर रहे हो, आपको जो सैलरी मिल रही है उसको आप कंपेयर कर रहे हो, आपके ही कोई कलीग है तो आप देखते हो कि अरे उसकी सैलरी कितनी है, वो भी मेरे जितना ही काम करता है या नहीं. अगर वो सिमिलर है तो दैट इज सीम्स दैट देयर इज़ अ इक्विटी. अगर वो सिमिलर रहेगा तो देयर विल बी द सेटिस्फैक्शन इन बिटवीन दैट एम्प्लॉयज़. ओके, सो सेकेंड सिचुएशन इज दैट योर आउटपुट divided by your input, when it is greater than compared to your others output and others input. अगर वो आपका अगर ज़्यादा आता है तो वो it is going to be considered inequity. वो क्या होता है, ओवर रिवॉर्डेड. मतलब आप और आपका कलीग दोनों भी काम सेम ही करते हो आपकी राइट, बट आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिल रहा है. तो एक जगह पे क्या होता है, इट क्रिएट्स द जो दूसरा आदमी है, जो भी आपका कलीग है, उनको ऐसा लगता है कि यार इसको तो सैलरी अच्छी मिल रही है. तो इट क्रिएट्स, आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे काम तो हम दोनों सेम ही करते हैं, बट आई एम गेटिंग द मोर प्रॉफिट और मोर सैलरी. तो कहीं ना कहीं जाके एक स्टेज पे आपको अच्छा लगेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू फील द गिल्टी और समवेयर यू फील ओवर कॉन्फिडेंस. तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट. क्योंकि आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो कंपैरेटिवली आगे के बंदे से ज़्यादा है जो आपके जितना ही काम करता है, राइट. सो थर्ड सिचुएशन ये आती है कि अगर आपका आउटपुट आपका इनपुट ये जो रेशो है आपको जो मिल रहा है वो आपके जो कंपैरेटिव जिससे आप कंपेयर करते हो उससे अगर कम है, राइट, तो वहाँ पे भी इनइक्विटी हो जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट अंडर रिवॉर्डेड. यू फील दैट फ्रस्ट्रेशन कि भाई यार मैं भी उतना ही काम करता हूँ, वो तो मेरे से काम कम करता है, स्टिल दैट पर्सन इज़ गेटिंग मोर, राइट. सो समवेयर दैट क्रिएट द फ्रस्ट्रेशन और द डिससेटिस्फैक्शन. समवेयर वो एंगर क्रिएट होता है एंड इट क्रिएट द मेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर व्हाट द सिचुएशन जहाँ पे आपका और आपके जो भी रेफरल है उनका रेशो जो है अगर इक्वल है तो दैट इज़ इक्विटी. अगर आपका रेशो उससे ज़्यादा है तो दैट क्रिएट्स इनइक्विटी, ओवर रिवॉर्डेड. अगर आपका रेशो आपके रेफरल से कम है दैट इज़ आल्सो इनइक्विटी, बट इट इज़ अंडर रिवॉर्डेड. और दीज आर द सिचुएशन वो ऑकर होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इक्विटी थ्योरी. सो सिंपल फंडा है कि यू हैव टू बैलेंस योर जॉब इनपुट्स एंड योर outputs. If there is a difference, if it is found that the employees' inputs are greater than the outputs, it leads to their demotivation. अगर ये जो हम इक्वलिटी देख रहे हैं दैट इज़ लिंक विथ समवेयर विथ योर मोटिवेशन. अगर आप सेटिस्फाई हो तो यू विल गेट मोटिवेटेड. अगर आपको लग रहा है कि आगे वाले बंदे को आपसे ज़्यादा मिल रहा है इवन दो यू आर डिजर्विंग, इट क्रिएट्स इनइक्विटी एंड इट क्रिएट्स द डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन. वेयर द रेशो इज़ कंपेरेटिवली अगर सिमिलर आता है दैट एम्प्लॉय सीम्स टू बी द सेटिस्फाई एंड मोटिवेटेड. ना वी आर गोइंग टू सी ये कंपैरिजन किसके साथ होता है. पहले मैंने बताया यूर इनपुट एंड आउटपुट इज़ गोइंग टू कंपेयर विद द अदर पर्सन. सो अगर यहाँ पे जो मैंने ट्री डायग्राम बनाई है यू कैन सी द सेल्फ एंड अदर के बीच में कंपैरिजन होते हैं. अदर आइदर वो इंडिविजुअल दूसरा कोई रहेगा या फिर ग्रुप रहेगा, तो आप खुद की कंपैरिजन करनी है अदर पर्सन के साथ. When we come to consider the self, there are two segments, that is self inside and self outside. अदर में भी आएगा अदर इनसाइड एंड अदर
outside. Let's go in detail what it exactly mean. That self inside, it is nothing but कि personal experience in the different past position in a same organization. मतलब आपके जो खुद के एक्सपीरियंस है, जो आपने महसूस किए हैं आपके सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपको लगता है, दैट इज़ सेल्फ इनसाइड. फॉर एग्जांपल कि आपका जो इनपुट एंड आउटपुट था ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर, पहले आप असिस्टेंट मैनेजर थे, फिर आप मैनेजर बन गए, तो आपका इनपुट आउटपुट क्या था, मैनेजर बनने के बाद क्या चेंजेस हो गए, आपकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, राइट, आपके प्रोफाइल में क्या चेंज हुआ, दैट इज़ सेल्फ इनसाइड. वो आप खुद आपका कंपेयर करोगे. देन आता है सेल्फ आउटसाइड. यहाँ पे कहता है आउटसाइड, मतलब अगर आपका पास्ट सिचुएशन, पास्ट पोजीशन में क्या सिनारियो था, यू आर गोइंग टू कंपेयर योर करंट एंड योर पास्ट पोजीशन. ओके, सो दैट इज़ व्हाट सेल्फ आउटसाइड. यहाँ पे आप दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो, खुद ही की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो, बट इट इज़ आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब योर पास्ट पोजीशन इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज़ व्हाट योर अदर इनसाइड. यहाँ पे अनदर इंडिविजुअल और द ग्रुप विद इन और इनसाइड द सेम ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यू आर गोइंग टू कंपेयर विद द अदर पर्सन, दैट इज़ व्हाट योर अदर इनसाइड. नेक्स्ट इज़ व्हाट अदर आउटसाइड. सिमिलर कि अनदर इंडिविजुअल और द ग्रुप विच हैज़ बीन कंपेयर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो पहले के कंपनी के आपके कोई कलीग्स रहेंगे, टीम मेंबर रहेंगे, उनके साथ अगर कंपैरिजन करते हो तो दैट कम्स अंडर द अदर आउटसाइड. सी, now we know that कि somewhere equity is being observed, somewhere inequity is there. So what we can do when you feel the inequity, क्योंकि जब ये फीलिंग्स आ जाती है ना तो पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है. सो वॉट यू कैन डू दैट. सो फर्स्ट इज़ वॉट, चेंज द इनपुट. आपको आपके इनपुट में चेंज करने पड़े. सो हाउ यू कैन डू दैट, चेंज द इनपुट. इनपुट हमने देखा कि आपके एफर्ट से, आपका स्किल से, आइदर यू कैन अपग्रेड इट, राइट. आपका लॉयल्टी रहेगा, आपका एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स, कॉम्पिटेंसी, उसको आप बढ़ा सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना. क्योंकि आपको लगता है यार इसके कारण मुझे वो जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिल रहे, तो यू कैन चेंज यूअर इनपुट, जो आप खुद को देना है. चेंज द आउटपुट मतलब क्या, अगर आपके जो हमने देखा कि आपको रिकग्निशन, एप्रिसिएशन, सैलरी में हाइक नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो यू कैन आस्क योर सीनियर, योर HODs, योर सुपेरियर, योर मैनेजर for the increment or the salary raise, right, your promotion, कि भाई ये मैंने किया है, आपको ये ऑब्जर्व नहीं हुआ क्या. सो आप आपकी जो भी साइड है यू कैन क्लियर विद दिस. सो आपका आउटपुट आप चेंज कर सकते हो. समवेयर क्या होता है, निगेटिव में अगर लेते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, मैं क्वांटिटी तो दूंगा बट मेरी क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि उनको दिखाना है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो आई कैन ऑल्सो डू दैट, बट मेक श्योर कि उसमें क्वालिटी, जब आप क्वांटिटी बढ़ाते हो तो क्वालिटी भी उतनी ही मेंटेन होनी चाहिए, राइट. थर्ड वन, चूज़ अ डिफरेंट रेफरेंट. अगर ये देखा जाए तो बचपन से ही इस पॉइंट को अगर समझना है तो बचपन से ही जो हमें बताया जाता है, एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर क्लास में आपके 30 स्टूडेंट्स है, अगर आपकी रैंक आती है थर्ड, बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता नहीं मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए और थर्ड आया है. सो व्हाट इट हैपन्स, लाइक आप सोचते हो कि थर्ड से मेरा फर्स्ट क्यों नहीं आया, बट ये सोचो कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना, टेक इट इन पॉजिटिव नोट, कि आपके पीछे ये बाकी के 27 लोग हैं, 26 लोग हैं, राइट, है ना, आप थर्ड हो, तो दैट इज़ व्हाट आपका रेफरेंट. आप कंपेयर उनसे मत करो जो आपके आगे, यू कैन कंपेयर विद दोज हु आर बिहाइंड यू. सो ये आप कर सकते हो कि अगर आपकी सैलरी आपको लगती है तो यू शुड नॉट कंपेयर विद दोज हु हैविंग द हायर सैलरी, यू कैन कंपेयर दोज हु हैविंग द लेस दैन यू. ओके, सो आपका जो रेफरेंस है ना, यू कैन चेंज, यू कैन चूज द डिफरेंट रेफरेंट टू गेट अ स्ट्रेस फ्री लाइफ. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, यू कैन क्विट द जॉब. So that is one another option that you can choose. Like if you feel that you are stressful, you are not going to be, your efforts is not going to be considered, so you can better quit the job. You can get a new opportunity, and वहाँ पे आपका जो भी स्किल्स है, कॉम्पिटेंसी वहाँ पे दिखा सकते हो. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, चेंज द सेल्फ परसेप्शन. मीन्स व्हाट, यू हैव टू पुश योर सेल्फ. आपको ऐसा लगता है कि भाई यार
मैं भी उतना ही काम करता हूँ, मेरा कलीग भी उतना ही काम करता है, राइट। आपको ऐसे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा करता हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज़ योर परसेप्शन। आपको ऐसे लगता है बट शायद आपके बॉस को वैसा नहीं लगता है। सो चेंज योर सेल्फ परसेप्शन। तो पुश करो खुद को, और स्किल्स बढ़ाओ, और एफर्ट्स दे दो। सो ऑटोमेटिकली इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर। ओके, खुद को पुश करो। नेक्स्ट इज़ व्हाट, चेंज द परसेप्शन अबाउट द अदर्स। बहुत बार ऐसे होता है, हमें लगता है कि सिर्फ मैं ही काम करता हूँ, आगे वाला बंदा नहीं करता, बट दैट इज़ योर परसेप्शन। सो आपने वो परसेप्शन अदर पर्सन से बनाया है, यू नीड टू चेंज दैट परसेप्शन। ओके, अगर वो करोगे तो आपको लगता है वो नहीं करता है, बट आपके हाई सीनियर्स है, मैनेजर्स हैं, उनको लगता है कि दैट पर्सन इज़ गिविंग द बेस्ट एज कंपेयर, नॉट इन क्वांटिटी बट ऑल्सो क्वालिटी। कुछ स्किल्स रहेंगे। सो दैट ऑल्सो यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन अबाउट द others. So this is all about the today's topic, that is equity. I hope now you understood the concept of equity. Thank you so much. Bye.